वेलकम है आप लोगों का सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इलिप्स हम लोग कर चुके थे, डाउट भी कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला। तो लिखिए सबसे पहले डेफिनेशन, हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose ratio of distance from a fixed point, whose ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line remains constant. Whose ratio of distance from fixed point and perpendicular distance from fixed line remains constant and is greater than 1. Fixed point is known as focus, fixed line is known as directrix, and constant ratio is known as eccentricity. Constant ratio is known as eccentricity. तो चूंकि पूरी तरीके से इलिप्स, पैराबोला, इलिप्स हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए नेक्स्ट हेडिंग, equation of hyperbola whose focus, equation of hyperbola whose focus, comma, equation of corresponding directrix and eccentricity is given. Equation of hyperbola whose focus, comma, equation of corresponding directrix and eccentricity is given. So let focus is alpha comma beta, equation of directrix Lx plus My plus n is equal to 0 and E is eccentricity. ये अगर आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका फोकस है, तो ये अगर कोई पॉइंट P है, P से S और P से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, PS upon PM is equal to constant and is greater than 1. तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला याद रखना है हमने, क्या इक्वेशन होगी? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी आपकी x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर इनटू lx प्लस ny प्लस n, चलिए होल स्क्वायर अपॉन L square plus n square. Equation of hyperbola is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to e square into lx plus my plus n whole square upon L square plus n square. Lx plus my plus n is equal to 0. Directrix equation, alpha comma beta coordinate of focus and E is eccentricity. आया कहां से? PS इक्वल टू EPM से। तो खैर ऑलरेडी इलिप्स वगैरह में बात कर चुके हैं, तो यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लेते। और इलिप्स में भी पूरी सेम इक्वेशन थी, बस एसेंट्रिसिटी आपका वहां पर E1 से कम था। हाँ, तो लिखिए दिस इज जनरल, नहीं पहले लिखिए दिस इज general equation of hyperbola. This is general equation of hyperbola which is second degree equation in x and y. This is general equation of hyperbola which is second degree equation in x and y. अब यहीं पर एक छोटी सी हेडिंग और दे लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, condition for second degree general equation, condition for second degree general equation to represent hyperbola, condition for second degree general equation to represent hyperbola. तो let second degree general equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Let second degree general equation is
ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। तो दो शर्त, पहली शर्त डेल्टा दैट इज abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square not equal to 0, and second h square minus ab greater than 0, h square minus ab greater than 0। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus is -1, 2, equation of corresponding directrix is 2x minus y plus 2 is equal to 0 and eccentricity is √3। तो फटाफट ओरली फटाफट जल्दी से बना दीजिए। तो ओरल क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to e square 2x minus y plus 2 whole square upon l square plus m square। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे 5x square plus 10x plus 5 y minus beta means y minus 2 plus 5y square minus 20y plus 20 is equal to 3 into a square plus b square plus c square minus plus minus तो 3 4s are 12, 12 minus 5 उसको उधर ले गए, 12 minus 5 7x square minus 12xy 3y square minus 2y square plus 24x minus 24 तो plus 14x minus 20y minus 12y minus 20 minus 32y plus 20 plus 5 25 12 तो minus 30 is equal to 15। This is equation of hyperbola। plus 8। तो इधर -20 था, इधर जाएगा +20 होगा और -12 तो +8 होगा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब थोड़ा सा आपका काम है, क्रॉस चेक भी कर लीजिए कि हाइपरबोला की कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं, मतलब वेरीफाई कर लीजिए। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा और h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आएगा। नोट करिए फटाफट। तो ये हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के बाद, अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, कैलकुलस या जो भी कह लीजिए इसकी स्टडी की गई, इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो कुल मिलाकर के हाइपरबोला बहुत हद तक इलिप्स की तरह ट्रीट होता है, बहुत सारी चीज़ें सेम होंगी। तो हाइपरबोला में भी दो फोकस, डायग्राम जो ड्रॉ किए तो देखिए, दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, एक सेंटर। तो यहाँ पर भी हमें जनरल इक्वेशन से अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में चलना है, और काफ़ी हद तक सारी बातें, बस फर्क ये है कि वहाँ पर हम लोग जिस एक्सिस पे फोकाई लाई करते थे उसे मेजर एक्सिस कहते थे, यहाँ पर नाम बदलेगा और हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास होती थी इलिप्स में हम लोग माइनर एक्सिस कहते थे, यहाँ हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। ऐसे डायरेक्ट्रिक्स वही रहेंगी, फोकस वही रहेंगे, बहुत हद तक सेम रहेगा, बहुत सारी चीज़ें, टेबल भी लगभग हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो
अगर आपको याद हो तो बाकायदा एलिप्स में हम लोग ने देखा था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई थी और एसेंट्रिसिटी गिवन था, तो वहाँ से हम लोग ने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के कोऑर्डिनेट वगैरह निकाले थे। तो पूरा उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, बस फर्क है कि सेंटर ये आपका हाइपरबोला का ओरिजिन, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई ई कैसे आया, तो आप आकर के हमसे अलग से पूछ सकते हैं। बाकायदा वैसे x इक्वल टू माइनस ए बाई, और ये आपका फोकस ए ई कोमा जीरो, और ये आपका फोकस एस डैश माइनस ए ई कोमा जीरो, ये आपका z, ये आपका z डैश, ये आपका ओरिजिन। पूरी तरीके से जो आपको हाइपरबोला की, अगर हाइपरबोला ये हम लोग ले, यहाँ पर हाइपरबोला का पॉइंट ए ले, ए जेड, ए फोकस से डिस्टेंस एस अपॉन ए जेड इक्वल टू ई, ए एस डैश अपॉन ए जेड डैश यहाँ पर, तो उसी तरीके से बाकायदा निकल करके ये आया। और डायग्राम जो हम लोग देखेंगे, डायग्राम हम लोग का कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये अब हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर हम इस पॉइंट P x, y एज्यूम करें, तो PS आपका कहलाता है फोकल डिस्टेंस और PM आपका, तो PS इक्वल टू EPM। PS कितना हो जाएगा, अभी फिलहाल हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, x माइनस AE होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी x है, ये डिस्टेंस a बाई, तो मॉड x माइनस a बाई ई, मॉड x माइनस a बाई ई, और e आपका पहले से लिखा, तो e भी आपको लिखना होगा, e इंटू दिस। तो नाउ वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ध्यान रहे कि डायरेक्ट्रिक्स a बाई ई माइनस a बाई ई, फोकस a, ये हमने आपसे कहा कि एलिप्स में हम लोग ने किया था, तो वहां से डायरेक्ट, फिर भी अगर कुछ जानना है तो आप अलग से पूछ सकते हैं। खैर वापस आते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर, 2aex कैंसिल, और ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर 1 से बड़ा होता है तो राइट हैंड साइड लेके गए, ई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर उधर लेकर के गए माइनस वाई स्क्वायर, और इसको इस तरफ ले आए ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। देखिए जैसे इलिप्स में यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आई थी उसका एक नया नाम दिए थे, तो यहाँ पर इसका नया नाम देंगे बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जिस इस एक्सिस को, इस केस में एक्स एक्सिस कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई एक्सिस कहलाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, और बी 2a कहलाएगा, यहां से अगर हम इसका नाम a और इसका नाम a डैश दे, तो a डैश आपका कहलाएगा 2a, जो कि कहलाता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, t डॉट a का मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये हम लोग को याद रखना है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड के लिए हम लोग ने इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को सेट किया कि डायरेक्ट्रिक्स मिड पॉइंट ओरिजिन, फोकाई का मिड पॉइंट ओरिजिन वो सेंटर, और पूरी तरीके से इलिप्स में हमने काफ़ी टाइम लिया था, ये सब प्रूव किया था, उसी चीज़ को यहाँ यूज़ कर लिए। अब वो इलिप्स में एक और काम किए थे, वो काम यहाँ भी करेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग ने टेबल बनाई थी, और वो टेबल हम लोग बोले थे याद रखेंगे। तो यहाँ पर और वहाँ पर भी दो केस बना था, जब a की वैल्यू b से बड़ी थी तो हम लोग कहते थे हॉरिजॉन्टल इलिप्स या फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, और जब b की वैल्यू a से बड़ी होती थी तो अब यहाँ पे हम देखेंगे a b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा या कुछ और पे।
इलिप्स में ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करता था कि फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, फोकाई वाई एक्सिस पे लाई करेंगे दैट इज वर्टिकल इलिप्स। यहां हम लोग बात करेंगे पहले इतना x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. This is equation of hyperbola when foci lie on x axis and center is at origin. नोट करिए, फिर अब टेबल की तरफ चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन की टेबल पहले x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ जैसे इलिप्स में a और b की वैल्यू पे डिपेंड करता था, यहाँ पर डिपेंड वैल्यू पे नहीं करता है। राइट हैंड साइड में अगर +1 है और फिर y स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव और x स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसे हम हाइपरबोला कहते हैं। या कहते हैं कि जो फोकाई है वो x एक्सिस पे लाई करेंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका y एक्सिस होगा, ये आपका x एक्सिस होगा, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये आपकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये आपका हाइपरबोला कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये हाइपरबोला कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये आपका a, ये आपका a डैश, ये आपका z, ये आपका z डैश। फिर वही बातें, डायग्राम में सब चीजें बहुत ही सिमेट्रिक होती हैं। बहुत ही सिमेट्रिक का मतलब OS इक्वल टू OS डैश, OA इक्वल टू OA डैश, है ना, ये सब सिमेट्रिक होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट B और B डैश, AA डैश आपका कहलाता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2A, और BB डैश कहलाता है लेंथ ऑफ CA, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, पूरा का पूरा इलिप्स का जो हम लोग टेबल बनाए थे, अगर आपको याद हो तो एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहला b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। इलिप्स में होता था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फोकाई की। फोकाई वहां पर भी प्लस माइनस a, 0 होता था, यहाँ पर भी प्लस माइनस a, 0। फोकाई के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, सेंटर की। सेंटर वहां भी 0, 0, यहाँ भी 0, 0। सेंटर के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, हाँ, वर्टिसेस प्लस माइनस a, 0। या वर्टिसेस को ही हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। वर्टिसेस को ही हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 0, प्लस माइनस b। इसके बाद फिर हम लोग एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम प्लस माइनस AE, प्लस माइनस b स्क्वायर। इसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, x इक्वल टू a बाई e, x इक्वल टू माइनस a बाई e। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस a। इसके बाद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE। ये आपका जो है, हाँ ये तो जो है नहीं, तो इलिप्स में अगर आप देखे थे तो इलिप्स के रेस्पेक्ट में एक हम लोग का भी बच रहा है इधर, तो फोकल डिस्टेंस इधर लिख लेते हैं, फोकल डिस्टेंस
तो पैराबोला से हम लोग ने पढ़ना शुरू किया कि कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे है उसकी डिस्टेंस फोकस से फोकल डिस्टेंस कहलाती है। तो P का कोऑर्डिनेट हमको देना पड़ेगा फोकल डिस्टेंस के लिए। तो आप बोलोगे सर क्यों लिखते हैं? तो डिस्टेंस फार्मूले से √x - a² नहीं, तो हम क्या करेंगे, PS = E टाइम्स PM होता है। तो E PM किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। तो PM ये टोटल डिस्टेंस x माइनस a/e, ex माइनस e, तो PS ex माइनस a। और इसी तरीके से PS डैश दूसरे वाले से ex प्लस डिस्टेंस हम लोग, तो ex प्लस a, तो दिस इज फोकल डिस्टेंस। याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदामंद है, नहीं तो आप कैसे निकालें ये भी हमने निकाल के आपको दिखा दिया। तो दिस इज हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1। फोकाई लाई ऑन x एक्सिस, सेंटर इज एट ओरिजिन। और अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। तो इलिप्स में हम लोग a और b पे, यहाँ पर हमने आपसे बताया कि अब आपकी इक्वेशन -x² / a² प्लस y² / b² = 1 होगी। -x² / a² प्लस y² / b² = 1 होगी, पहली बात। और मतलब यहाँ a और b की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। राइट हैंड साइड में +1 है, राइट हैंड साइड में +1 है। x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, फोकाई लाई ऑन x एक्सिस। y² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, फोकाई लाई ऑन y एक्सिस। तो डायग्राम को जब आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका हाइपरबोला, ये आपका फोकाई, ये हाइपरबोला कर्व, ये आपका फोकाई, ये आपका b, ये आपका b डैश, ये आपका z, ये आपका z डैश, ये आपका z। अब यहाँ पर b डैश आपका कहलाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज 2d। a डैश कहलाएगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, दैट इज 2a। और दूसरी बात, हम लोग -x² / a² प्लस y² / b² = 1 को कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी कहते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दिस इज सिंपल हाइपरबोला, दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और हाइपरबोला whose foci lie on y axis, whose foci lie on y axis। आइए इसकी भी टेबल लिखते हैं। इसमें सबसे पहला रिलेशन क्या होगा? सबसे पहला रिलेशन होगा a² = b² × e² - 1। फिर आपका फोकाई होगा 0, ± be। फोकाई के बाद सेंटर होगा 0, 0, दिस इज सेंटर, दीज आर फोकाई y एक्सिस पे। उसके बाद वर्टाइसेस का मतलब एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ± a, 0, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ± a² b, ± be। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y = ± b/e, y = +b/e, y = -b/e। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस x = 0, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस y = 0, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम y = ± be, लेंथ
of transverse axis to be length of conjugate axis 2a, length of latest rectum 2a square by b, distance between foci 2be और focal distance p अगर x, y है तो फिर यहाँ पे PS इक्वल टू EPM, PS इक्वल टू EPM से निकालिए तो क्या आ रहा है PS और PS डैश। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की आपकी ये टेबल बन गई। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला तब हम बोलते हैं जब राइट हैंड साइड में +1 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, दैट इज फोकाई y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। फोकल डिस्टेंस PS का कोऑर्डिनेट x, y है, EY माइनस b एंड PS डैश EY प्लस b। तो ये आपका ये लगभग आप अगर आप देखोगे केवल ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस नाम बदले, बाकी पूरी की पूरी टेबल एलिप्स की तरह ट्रीट हो रही है। यहाँ पर वहाँ होता था a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर, क्योंकि वहाँ E1 से छोटा होता था, बस ये फर्क है। तो आपको अलग से अगर एलिप्स की टेबल याद है तो समझने के बाद आपको हाइपरबोला की टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद टेबल मानते हुए कि याद होने के बाद, इफ E1 and E2 are eccentricities of a hyperbola and its conjugate hyperbola, हाइपरबोला की eccentricity E1 और conjugate hyperbola की eccentricity E2 है, then show that 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 1। आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ रिलेशन होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर E1 लिखेंगे। तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर माइनस 1 या E1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आपकी होती है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ होता है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट लिख रहे हैं E2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन। अब आपको क्या निकालना है, 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर, 1 अपॉन रेसिप्रोकल a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1। और ये ऐसे प्रॉपर्टी याद भी रखना है, इस पे क्वेश्चन हो सकता है आपको जेईई मेन में डायरेक्ट मिल जाए। तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू, आइए देखते हैं। डायग्राम से ही देखते हैं। अगर आप डायग्राम से देखोगे तो ये हाइपरबोला, ये ए डैश, और डायग्राम उतना हमको लगता है सही लोग बन रहा है नहीं बन रहा है देखना पड़ेगा ना, नहीं सही बन पा रहा है। ये आपका बी, ये आपका बी डैश। अब अगर आप बाई ज्योमेट्री देखोगे तो ये डायग्राम अच्छा नहीं बना,
डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी, ये आपका हाइपरबोला होता है, और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, बाई ज्योमेट्री ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर है ना, तो चारों साइड इक्वल, और बाय ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे है ज्योमेट्री से एक लाइन पे। ज्योमेट्री से अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट होता है a इंटू ई, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0 होगा, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0 होगा, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से भी निकालोगे तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल, और ये आपस में परपेंडिकुलर। तो खैर ये तो ओरली भी आप कर सकते थे, इसको भी एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की फोकाई क्या फॉर्म करती हैं, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose length of latus rectum is 8 and length of conjugate axis is equal to half the distance between foci, half the distance between foci। तो आपको हाइपरबोला कहा गया है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला एज्यूम कर लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और फटाफट एसेंट्रिसिटी। तो स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन। आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। फाइंड द एसेंट्रिसिटी, तो हमने कहा कि हम लोग हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a इक्वल टू 8, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 4a, पहली बात। अब यूज क्या होगा अभी देखते हैं अपन। दूसरा दिया है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज 2b is equal to half the distance between foci। फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2ae होता है, तो ae is equal to 2b is equal to ae। एक और रिलेशन हम लोग को पता है, b स्क्वायर is equal to a स्क्वायर into e स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये आपके पास एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन, अब कितने रिलेशन की जरूरत पड़ेगी आपको देखना है, और फटाफट आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया है तो फिर से एक बार देखिए, फिर हम बताते हैं। तो चलिए, अरे भाई इसका ही क्यों यूज कर लो, b इक्वल टू ae, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा ae बाई 2, तो a स्क्वायर e स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कैंसिल, e स्क्वायर इक्वल टू 4e स्क्वायर माइनस 4, e स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 3, e इक्वल टू हाँ प्लस माइनस नहीं, केवल 2 बाई रूट 3, क्योंकि E एसेंट्रिसिटी है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस है जो कि नेगेटिव नहीं होगी। तो इस क्लास में फिर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे कि इक्वेशन ऑफ अगर हाइपरबोला गिवन है तो फोकाई निकालना, सेंटर निकालना, सारी चीजें निकालना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक दो क्वेश्चन करेंगे कि अगर गिवन है तो इक्वेशन निकालना, और फिर हम लोग अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।